Welcome back, dear students of BGMC 4th semester. This is your lecture 2. Last time we have done the lecture 1 and on paper of Basic of Advertising and Public Relation. The topics which we have covered were Introduction, Definition, Meaning, Concept, History and Development of Advertising. Today we will be starting up with the new topic, which is about that how the advertisement can be, or how the advertisement in the last 17th or 18th century, 19th century and 20th century, what was the work and how it has been progressed. Because as we were doing the last topic, history background of the advertising, so here is the part of it. In 17th and 18th century, what were the works being done for the advertising? Let's see. So in the early 17th century, an important new medium of advertising, the newspaper, was invented in England. So just remember that in 17th century, for the new medium of advertising, newspaper was invented in England. This saw the beginning of newspaper advertising on the larger scale. Advertising industry is journal continued to flourish. Paper advertising in America first appeared at the beginning of the 18th century. तो अगर हम सत्तरवीं आपकी जो 17th सेंचुरी है, उसकी शुरुआत में जो समाचार पत्र के विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण नया माध्यम था, प्रिंटिंग मीडिया, दैट इज़ फॉर द न्यूज़पेपर, जो कि इंग्लैंड में आविष्कार किया गया था और इसने बड़े पैमाने पर अखबार में विज्ञापन की शुरुआत देखी। तो सामान्य तौर पर विज्ञापन उद्योग का विकास जारी रहा उसमें, और फिर 18वीं सदी की बात करते हैं तो पेपर एडवर्टाइजिंग में अमेरिका जो है वो फर्स्ट अपीयर कंट्री था जिसने बिगिनिंग करी 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में। अराउंड दिस टाइम बेंजामिन फ्रैंकलिन often considered to be the father of American advertising. जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो उस दौरान फादर ऑफ अमेरिकन एडवर्टाइजिंग माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने पब्लिशिंग की शुरुआत करी थी एंड इट वाज बीइंग लाइक द पेनिनसुला गैजेट, जो एक इनका नाम था न्यूज़पेपर का। व्हाट वाज दैट? इट वाज द पेनिनसुला Gadget. So soon this became the largest circulating paper in America. और देखते ही देखते ये अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने में इसकी बहुत बढ़ोतरी हुई और सबसे बड़ा एक सर्कुलेटिंग पेपर बन गया ये, with the largest advertising volume of any paper. It contained advertisement for products such as books, wine, tea, chocolate and other commodities. तो एक समय पे इसके उत्पादों के लिए विज्ञापन, जैसे उसने किताबें, वाइन, चाय, चॉकलेट और अन्य जैसे विज्ञापनों के लिए, अन्य जैसे प्रोडक्ट्स के लिए इसमें इन्होंने शामिल किया कि किस तरीके से हम एडवर्टाइजिंग करें। और एडवर्टाइजिंग देते देते एक टाइम पर ये अमेरिका का न्यूज़पेपर बहुत बड़ा साबित हो गया। Benjamin Franklin is also considered for making the important innovations in newspaper. He was a copywriter, advertising manager, salesman, publisher, and editor, all rolled into one. He was the person, Benjamin Franklin was considered one of the famous innovation in newspaper advertising. और उनके अंदर ये सारी खूबियाँ थी। वो एक इनोवेशन ही नहीं करते थे न्यूज़पेपर के एडवर्टीज़मेंट के लिए, बट ही ऑल्सो वर्क एज अ कॉपी राइटर, एडवर्टीज़मेंट मैनेजर, सेल्समैन, पब्लिशर, एडिटर, सारी खूबियाँ एक ही इंसान में थी।
So by the end of 18th century, there were over 100 local newspaper in the United States. और 18वीं सदी के अंत तक आते आते लोकल न्यूज़पेपर्स जो पब्लिश हो गए वो करीबन 100 थे। अब हम आते हैं 19वीं सदी में। तो in the 19th century, the boom in newspaper advertising continued in the 19th century. Early American ads were classified as personal ads, wives looking for waiting husbands, owners searching for runaway slaves, householders seeking servants. So there were also ads for popular medicines and tobacco. ये सारी चीज़ें उस न्यूज़पेपर में मेंशन होती थी कि कौन क्या देख रहा है, कौन क्या ढूंढ रहा है. Everything was mentioned. And along with the newspaper, advertiser starts using the leaflets and brochures as well as. तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को सिर्फ उसमें ये डाला गया कि कौन कैसे एड्स दिए जा रहे हैं. जैसे आजकल शादी.com पे शादी न्यूज़पेपर का एक पेज ही अलग होता है जिसमें ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, कॉलम अलग होता है. ठीक इसी तरह इट वाज बीइंग क्लासिफाइड फॉर द पर्सनल एड्स, जिसे हम पर्सनल ऐड के नाम से जानते हैं. तो कि यहाँ पे इस वैकेंसी में इस कंपनी में ऐसी वैकेंसी खाली है, ये पर्सनल ऐड है कंपनी का. फिर शादी के लिए तो शादी का एक कॉलम अलग होता है फॉर द मैरिजेस. तो हर चीज़ों का एक अलग कॉलम होता है जिसे बोला जाता है एज अ पर्सनल एड्स. सो अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजर स्टार्टेड विद द लीफलेट्स, और एक पेपर के साथ लीफलेट्स भी देने लग गए और ब्रोशर्स भी देने लगे जिसमें एड्स के बारे में कोई भी ऐड कोई भी ब्रांड के बारे में बताया गया. नेक्स्ट we came to the introduction of another big future medium of advertising, magazines in the early 19th century. फिर अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग के दूसरे रूप पे न्यूज़पेपर से हट के, तो मैगज़ीन एक ऐसा माध्यम था 19वीं सदी का जो कि लागू हुआ और अभी तक बहुत अच्छे पैमाने में मैगज़ीन्स का अच्छा एडवर्टीज़मेंट स्कोप है. The middle of the 19th century was the period when advertising became big business, especially in America. And this was the period before the Civil War. The industrial revolutions made labor and capital more productive and provide a plethora of goods for sale at reasonable prices. The first advertising agency was emerged during this period. तो जैसे कि बताया गया था कि 19वीं सदी में जो आरंभ किया था नेक्स्ट ने, तो उसने विज्ञापन पत्रिका में एक और बड़े भविष्य में माध्यम परिचय दिया जिसको मैगज़ीन के रूप में लाया गया. और फिर विशेष रूप से अमेरिका में यह गृह युद्ध से पहले की अवधि थी जहाँ पर औद्योगिक क्रांति श्रम और पूंजी को अधिक उत्पादक बनाया गया और बिक्री के लिए माल का ढेर प्रदान किया गया. तो इसके दौरान पहला विज्ञापन जो एजेंसी भी सामने आई. Then we move on to the 20th century. So having grown in the stages, advertising is the early 20th century developed some distinctive style of its own. The first was the soft spell approach, and this was the characteristic by subtle ads with the literary style and attention to form the color and visualization. This gift emphasizes on the theoretical route to persuade the audience about the product or service advertised. 20वीं शताब्दी के आरंभ में विज्ञापन के कुछ विकसित रूप हैं जो अपनी खुद की विशिष्ट शैली है. तो पहले जैसे कोई भी बिक्री वाला दृष्टिकोण था, किस तरीके से अपनी चीज़ों को सेल करना है और उस तक अप्रोच करना है. यह एक साहित्य के साथ सूक्ष्म विज्ञापनों की विशेषता भी बताता है. रंग और दृश्य बनाने के लिए शैली और ध्यान देना उस पर कि किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट का जो एक लिटरली स्टाइल है उस पर फोकस करना है, उसमें कौन से कलर डालने हैं, कैसा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, उसका जो अपीयरिंग फैक्टर है प्रोडक्ट का
वो कैसे अट्रैक्टिव दिखे जो आपके ऑडियंस को मजबूर कर दे खरीदने पे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ इस दर्शकों को उत्पादों की सेवा के बारे में बताने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ों का इन्होंने ऑप्शंस चुना कि जो कि प्रोडक्ट्स और सर्विस में काम आता है फॉर द एडवर्टीजमेंट फैक्टर। द सेकेंड वॉज द हार्ड शेल अप्रोच। पहले हम जो पढ़ रहे थे वो था सॉफ्ट शेल, देन मूव ऑन टू द हार्ड शेल। इसमें derive from the definitions by advertising by the most famous copywriter of all the time, John E. Kennedy. Kennedy during his meeting was the other great man of era. Albert Lasker, later president of the agency, Lord and Thomas, defined the advertising as a salesmanship in print. जो एल्बर्ट लास्कर है, जो एक प्रेसिडेंट रहा करते थे उस टाइम पर, उनकी जो एजेंसी थी लॉर्ड्स एंड थॉमस की, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को ये बताया कि एडवर्टाइजमेंट क्या है। उन्होंने कहा कि सेल्समैनशिप इन प्रिंट है, किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बेचते हो इन द प्रिंट मीडियम फॉर्म लाइक इन द न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन्स। जैसे कि इस परिभाषा के उत्पाद की श्रेष्ठ के लिए एक ठोस कारण की व्याख्या की गई है, a logical argument on the basis of which audience could persuade to form the positive attitudes towards the advertisement product or service। इस पर आधारित एक दृष्टिकोण को हार्ड सेल यानी हार्ड सेल एज आई टोल्ड यू भी कहा गया है। एक तार्किक तर्क वह आधार था जिस पर दर्शकों को विज्ञापित उत्पाद या सेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए राजी किया जा सकता था। नाउ द नेक्स्ट थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कवर इज़ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अभी तक हमने पढ़ा कि हिस्ट्री बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग का क्या है, जिसमें कि 17th-18th सेंचुरी से लेकर के एडवर्टाइजमेंट का क्या रूप रहा है, फिर 18th सेंचुरी में, फिर 19th सेंचुरी में, एंड देन इन द 20th सेंचुरी। नाउ वी आर मूविंग टू द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो पहला एडवर्टाइजिंग जो है वो है पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग यानी प्रेरक विज्ञापन। अ पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग ट्राइज टू कन्विंस कस्टमर दैट अ कंपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट। इसमें क्या होता है, आप अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को प्रेरित करते हो कि आपकी कंपनी का सामान जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। एंड इट वर्क्स टू ऑल्टर द परसेप्शंस एंड एनहांस द इमेज ऑफ द कंपनी और प्रोडक्ट। ठीक, और ये धारणाओं को बदलने और कंपनियों या उत्पादन की छवि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका गोल क्या है, टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स टू टेक एक्शन एंड स्विच ब्रांड। किस तरीके से उपभोक्ताओं को कार्रवाई, मतलब इसमें वो देखें, इसको, इसके एडवर्टीजमेंट को देखें, इसको इस्तेमाल करें एक बार और फिर इसी ब्रांड को हमेशा खरीदें। एक नए उत्पाद की कोशिश करने के लिए, एक मौजूदा ब्रांड की प्राप्ति के लिए इन्होंने इसे माना है। एंड दे जस्ट वांट कि किस तरीके से प्रोडक्ट को आप ट्राई करो और फिर हमेशा उसी पे डिपेंडेंट होकर के अपने करंट ब्रांड को हमेशा चुन लो। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोलगेट आज का नहीं है, वो नेस्कैफ़े, ठीक, आज का ब्रांड नहीं है वो, ना जाने कितने सालों से चला आ रहा है। ताजमहल, ना दीज काइंड ऑफ ताजमहल टी जैसे हो गया, कितने वर्षों से चली आ रही है। नेस्कैफ़े कॉफ़ी कितने लॉन्ग टाइम पीरियड से है, क्योंकि आपने उसको एक बार यूज़ किया और फिर आप उसके यूज़ टू हो गए। सो दिस इज़ कॉल्ड द पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग। किस तरीके से कस्टमर को कन्विंस करना है एक कंपनी का काम कि आपने एक बार ब्रांड दिया, एज अ सैम्पल के तौर पे दे दिया। जब कोई भी कंज्यूमर आपकी इस चीज़ को, इस ब्रांड को यूज़ करता है, उसे एनालाइज करता है और फिर उसके बाद उसे स्विच करता है। देन वी मूव ऑन टू द इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। इंफॉर्मेटिव, जब कोई भी कंपनी शिक्षित किसी को इन्फॉर्म करती है
किसी की भी प्रोडक्ट के बारे में समझाती है. So informative advertising is used when company launches a new product to educate consumers about the feature of the product. जब कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो वो अपने कंज्यूमर को एजुकेट करती है कि उसके क्या क्या नए फीचर्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एनी ऑफ द न्यू ब्रांड मोबाइल, आप वीवो ले लो, सैमसंग गैलेक्सी ले लो, एनी ऑफ द मोबाइल. अब जब किसी कंपनी ने लॉन्च करा है उस प्रोडक्ट को तो जाहिर सी बात है वो एजुकेट कैसे करेगी अपने कस्टमर्स को, उसके फीचर्स बता के, उसके प्लस पॉइंट्स बता करके. जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो आप मॉडल देखते हो बाद में, पहले आप उसकी क्वालिटीज़ और उसके फीचर्स जानते हैं. कितना मेगापिक्सल कैमरा है उसमें, इसकी क्वालिटी कितनी है, राइट, पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी, एवरीथिंग यू चेक इन डिटेल. कितना GB RAM है इसमें, तो एवरीथिंग व्हेन यू चेक इन डिटेल देन ओनली आप उसको परचेज़ करते हो. So this is something when you get an information about the advertisement. So any of the things which is dependent with safety with the full features, full information, वो कहलाता है informative advertisement. Then we move on to the third, that is institutional advertisement. The main object of the institutional advertisement is to build a positive image. अपनी इमेज को पॉजिटिविटी वे में लेके जाना, अपना एक प्रोडक्ट का गुडविल बनाना है. कि कोई भी इंडस्ट्री है अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए गुडविल बनाते हैं, राइट. सो जो संस्था के रिलेटेड है, जो जैसे इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीज़मेंट है, तो वह संस्थागत विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य प्रदान करती है, उसका उत्पादन होता है. सो बिक्री को बढ़ाने, जो आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देने के बजाय एक विशेष उपयोग के बारे में संवादना देते हैं. एंड द बेनिफिट्स, आइडियाज़ एंड फिलॉसफी ऑफ द बिजनेस आर कन्वेड इन द ल्यूसिड मैनर. उसका क्या लाभ है, उसके बारे में क्या विचार है, क्या व्यवसाय है, उसके दर्शनों को एक आकर्षक तरीके से व्यक्त किया जाता है. तो उसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन. देन द फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट इज इंडस्ट्रियल एडवर्टीजमेंट. इंडस्ट्रियल एडवर्टीजमेंट इज एम्ड एट मैन्युफैक्चरर. इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टीजमेंट. इंडस्ट्रियल क्या होता है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है. औद्योगिक विज्ञापन निर्माताओं के बारे में जिसमें बताया जाता है. तो इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस जो एक बिजनेस से बिजनेस एडवर्टीजमेंट को, जिसमें एक निर्माता अपने टूल्स के बारे में प्रोमोट करता है, उपकरण और निर्माण प्रक्रिया के बारे में उपयोग जानने वाले कच्चे माल को बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से अपने टूल्स को, अपने इक्विपमेंट्स को, जो कच्चा माल है उसको किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेके जाएं. कोई भी इंडस्ट्री होती है, जब आप मान के चलो कि आपको कार बनानी है, अब डायरेक्ट कार तो नहीं मिलेगी, वो तो बनी बनाई एक कंपनी में है, लेकिन उसके पहले किस तरीके से उसके सारे पार्ट्स, उसके इक्विपमेंट्स जो है वो कौन सी कंपनी में मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, सारे पार्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, तब जाकर के कंपनी में पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे वो पूरी कार बन के तैयार होती है. सो दैट इज़ नोन एज द इंडस्ट्रियल एडवर्टीजमेंट. फिफ्थ इज़ द फाइनेंशियल एडवर्टीजमेंट. Financial advertisement is the practice of advertising to the investor, loan, banking. Financial advertising is the practice of advertising to the investor, loan, banking and mortgage consumers. तो इसमें वित्तीय विज्ञापन, निर्देशक ऋण, बैंकिंग के बारे में विज्ञापन दिया जाता है कि किस तरीके से आपको
लोन लेना है, जैसे कोई जगह लेनी है तो उसके लिए आप लोन लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, बैंकिंग, फाइनेंशियल, तो हर चीज़ की जानकारी जो फाइनेंशियल एडवर्टीज़मेंट के द्वारा मिलती है, दैट इज़ द फाइनेंशियल एडवर्टीज़मेंट। कि कोई भी आपको लोन के बारे में जानना है, बैंकिंग प्रोसेस के बारे में जानना है, सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल एडवर्टीज़मेंट। देन क्लासिफाइड, द लास्ट टाइप ऑफ एडवर्टीज़मेंट इज़ क्लासिफाइड। एडवर्टीज़मेंट इन अ न्यूज़पेपर आर टिपिकली शॉर्ट। अगर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, अखबारों की, तो उसमें एडवर्टीज़मेंट जो होते हैं वो एक शॉर्ट तरीके में दिए जाते हैं, एज दे आर चार्ज्ड फॉर बाय द लाइन और अ वर्ड, क्योंकि नेचुरल है, हर ऐड का उसके हिसाब से पैसा होता है न्यूज़पेपर में। तो जब हम बात करते हैं तो एक कॉलम डिवाइड है, तो एक पर्टिकुलर कॉलम का पैसा डिसाइडेड है कि इतना पैसा लगेगा, तो उसी के हिसाब से एडवर्टीज़मेंट को रखा जाएगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी डिटेल दे दी जाए आपको एडवर्टीज़मेंट के बारे में, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ मनी। हर चीज़ का चार्ज दिया जाता है जो एक लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड मैटर करता है, एंड दे आर इन द वन न्यूज़पेपर कॉलम वाइड। द एडवर्टीजमेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज और क्लासेस सच एज फॉर सेल, telephones, wanted kitchen appliances, services, plumbing, has terms classified। तो हर चीज़ की कैटेगरी होती है, क्लास होता है, जिसके अकॉर्डिंग सारे एड्स दिए जाते हैं कि अगर हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसका अलग कॉलम, किचन अप्लाइंसेस है चाहिए है अगर आपको तो उसका अलग कॉलम, कोई सर्विस चाहिए लाइक इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, तो हर चीज़ का ऐड एक क्लासिफाइड फॉर्म में दिया जाता है जिसको हम क्लासिफाइड ऐड बोलते हैं। सो दीज ऑल वर द 6 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। Try to read and understand the whole topic, all the topics that are being covered in a very simple form। सारे टॉपिक्स बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, और जो भी इसमें क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, just try to understand and do it। So that's all for today. Have a good day. I will be uploading the next video very soon.